Hi student, good morning. Today I'm going to continue previous exercise only. See, to solve this previous exercise, many formula you must know. That is, see here, in if series is in AP, okay, and sum of like not you can say AP also. That is 1 plus sum of this kind of 1 plus 2 plus 3 plus like this plus n terms. So you must know this formula, that is n into n plus 1 upon 2. Second, if series is like sum of the square of n terms, 1 square plus 2 square plus 3 square plus n square. So here it is n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. Okay, next you may come across cube also. So that is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus like this up to n cube. So its formula is just see how to remember, just square this whole, that's all. That is n square into n plus 1 whole square on 2 square will be 4. So this is the formula. Some more you have to remember, that is sum of the formula of AP. AP में क्या होता है, सम ऑफ एस एन फार्मूला, दैट इज n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. ओके, और जीपी में एस एन फार्मूला क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर. ओके, नेक्स्ट लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x. अगर ऐसा एक्सप्रेशन कहीं मिले तो दैट इज इक्वल टू 1. ये लिमिट में हम पढ़ चुके हैं. सो ये you will have to use this, you may come across the questions where this formula will help you. Okay, so यहाँ पे infinite term भी but you will not get infinite term in this exercise. Okay, so this formula is important. Note down. Now I will continue with one question. So see the question. I have taken this one from example. Okay, it is limit is from 0 to 2 and function is x square plus 1 dx है. हम इसे दो तरीके से बना सकते हैं. ये क्या कर सकते हैं, इसको हम सेपरेट कर दें. See, we can solve this also, like we have to break this into two form, two terms, x square dx plus 0 to 2 dx. ओके, तो हम इसको अलग अलग करके इसको I1 मान सकते हैं, इसको I2 मान सकते हैं. I1 को सॉल्व करेंगे, उस पर हम I2 जोड़ देंगे. ऐसे भी हम बना सकते हैं. ओके, ऐसे भी हम बना सकते हैं उसको. ओके, और डायरेक्ट भी बना सकते हैं. लेट्स सी दिस टाइप, ऐसा करके बनाते हैं हम. ओके, कीप पेशेंस. सो I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 x square dx. Here h is equal to b minus a upon n. So in both case h will be same for I1 also. Oh sorry, power gone, power came.
See, I was telling for I1 and I2, both H will be same, B minus A. B minus A, what is it? Is 2 only. 2 minus 0 is equal to 2 by n. So equal to 2 by n. Now this one I am going to solve for I1. So B minus A, that is 2. To limit H tends to n tends to infinity, 1 upon n. Same formula we have to use, that is here f of A is what? F of A is 0. So f of 0 plus f of A plus H. A is what? 0. 0 plus H is 2 by n, plus like this f of 0 plus n minus 1 upon n minus 1. See, everywhere 2 by n, H is 2 by n. Okay, here A plus A is 0. So here it will be 2 upon n. ओके, ये इसको समझो। हमने फंक्शन में जस्ट सिर्फ फंक्शन रखा, अभी वैल्यू पुट नहीं किया उसका। एफ ऑफ 0 प्लस एच, लाइक दैट 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच होता है, फॉर्मूला में ही होता है ना। अब हम क्या करेंगे, जस्ट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, पुट द वैल्यू एफ ऑफ 0। फंक्शन देखिए कहाँ पे, ये फंक्शन है, इसमें 0 पुट करना है, तो क्या आएगा, ये 0 ही आ जाएगा ना, कैन सी। सो 0 प्लस यहाँ पे क्या बचा, 2 बाई एन। अब इसमें हमें 2 बाई एन पुट करना है, सो 2 बाई एन करें तो क्या आएगा, 4 बाई एन स्क्वायर, प्लस क्या पुट करना है, यहाँ पे क्या आएगा, n माइनस 1 का स्क्वायर, n माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब यहाँ क्या आएगा, 4। ठीक है, यहाँ भी 4 बाई एन स्क्वायर आया बाहर। सी हियर 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n, ये 0 है, you will not consider 0, so leave it। so 4 by n स्क्वायर, 4 by n स्क्वायर बाहर आया, यहाँ कितना बचा, 1 प्लस 2 प्लस लाइक दैट, कहाँ तक है ये, n माइनस 1 तक, n माइनस 1 तक है ये। ठीक है, ये स्क्वायर है, ठीक है, दिस इज स्क्वायर, सो 1, दिस इज 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, n माइनस 1 स्क्वायर। ओके, so here it is 2 into limit n tends to infinity 1 by n 4 बाई एन स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कौन सा, स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना हमें। once again I will write the formula here, that is n into n plus 1 into 2n plus 1 अपॉन 6 होता है फॉर्मूला में। ठीक है, सेम थिंग वी आर गोइंग टू राइट n क्या यहाँ पे n माइनस 1, सो यहाँ क्या हो जाएगा, n माइनस 1। ठीक है, फिर n प्लस 1 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर n हमारा क्या है, -1, n माइनस 1 में प्लस 1 करें तो क्या बचेगा, n। नेक्स्ट 2n प्लस 1, 2 इंटू n, n क्या है, n माइनस 1। देखिए 2 इंटू n माइनस 1 करें क्या होगा, 2n माइनस 2 और प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1। सो 2n माइनस 1, रिमेनिंग नीचे क्या था, 6 है। ठीक है, 2 इंटू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 बाई n। ठीक है, अब यहाँ क्या दिख रहा है, n और ये n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, और 4 और 6 भी कैंसिल हो, क्या रिमेनिंग इज 4, 2 बाई 3n। ठीक है, और यहाँ क्या बच गया, n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1। ओके,
2 into limit n tends to infinity 1/n। अब यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ से अगर n यहाँ, अब क्या करेंगे, जस्ट एक n यहाँ से बाहर आएगा, एक n यहाँ से बाहर आएगा, तो कितना टोटल n² बाहर आया, 2n²। यहाँ क्या बचा, 1 - 1/n, n बाहर लिए हैं, यहाँ क्या बचा 2 - 1/n, ठीक है। और यहाँ पे 3n है। सो 2 इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये 1/n को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा नीचे, n², दिस n² विल गेट कैंसिल आउट, सो रिमेनिंग हियर 2/3 बचा इंटू 1 - 1/n इंटू 2 - 1/n, ये है, ठीक है। अब n टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये टर्म, दिस टर्म बिकम्स 0, दिस टर्म बिकम्स 0, ओके। सो 2 into 1 is 2, 2, see this term is 0, this term is 0, okay. So what we will get if we apply the limit here, then what we will get, 2 into, what we will get, 2/3 into 1 and into here 2, so 2 into 2 4, 4 into 2 8, so we will get here 8/3, okay. So I1 we got 8/3. Next step we have to find I2. I2 we have to find, here 1 it is, okay. So see here 0.2 dx, 0 to 2 dx, ठीक है। फंक्शन इसमें क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, ओके। सो इसमें हमें क्या करना है, a plus, sorry, b minus a, already we have h value, put in the formula, that is 2 into limit n tends to infinity, then 1/n f of a, f of a। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन 1 है, फंक्शन ही 1 है, फंक्शन ही कांस्टेंट है, तो ये यहाँ पे 1 ही पड़ेगा ना, अंडरस्टूड। हियर इट इज, सी हियर फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। पहले फॉर्मूला हम लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h, तो लाइक दैट इट विल गो अप टू प्लस एफ ऑफ ए प्लस n - 1 अपॉन, सॉरी, n - 1 h, ठीक है। लेकिन फंक्शन इज कांस्टेंट, सब जगह 1 ही है, वहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी एवरीवेयर 1, तो 1 कितने बार है, n बार, तो 2 into limit n tends to infinity, here 1/n is already there, and here we will get n into 1 will n, so the remaining is 2. So the total अब टोटल क्या हो गया, 2 0 to 2 x² + 1 dx, हमारे अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ I1 + I2। ऐसे थोड़ा लेंदी होता है बट थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। सो I1 हमें कितना मिला, 8/3 प्लस I2 कितना मिला, 2, तो ये कितना आएगा, 8 प्लस 3 into 2 6/3, सो इक्वल टू 14/3। थोड़ा लेंदी हुआ बट you can see one method is given in exercise also, I mean in example also, you can try that method also, or you can apply this method also. For slow learner,
this method is correct. Okay. Next we will see question 3 of exercise. Okay, 8.1. It is 2 to 3 x square dx. 2 to 3 x square dx. ओके, जस्ट ना एक्स स्क्वायर हमने देखा था. ओके, बट चेंजेस क्या थे उसमें, b and a were different. Here we should find the value of h. H is equal to again b minus a upon n. So b minus a means 3 by 3 minus 2 1 upon n. h का वैल्यू मिल गया. ठीक है, और b minus a का वैल्यू 1. So just substitute in the formula directly. So b minus a, that is 1. So I will not write 1 into क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी देन 1 बाई n. फिर क्या होता है, पूरा फंक्शन लिखते हैं f ऑफ a. f ऑफ a क्या है यहाँ पे, a is 2 here. See, this is a, this is b. So f of 2 प्लस f of क्या होगा, 2 प्लस h होगा, प्लस like that it will continue up to f of 2 प्लस. सी यहाँ पे क्या होता है, h नहीं होता है, यहाँ पे h है, फिर 2h, फिर 3h. तो यहाँ पे क्या होगा, n माइनस 1 h. nh नहीं होगा क्योंकि स्टार्ट जब 1 है तो h नहीं है, जब 2 में 1h है, 3 में 2h, एक कम हो रहा है, इसलिए n माइनस 1h है. ठीक है, इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n f ऑफ 2. अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2 पुट करना है तो डायरेक्टली इट इज़ 4, और 2 स्क्वायर हम रख सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एच. एच क्या हमारा 1 बाई एन है. सो आई विल राइट 2 प्लस 1 बाई एन का होल स्क्वायर. दिस विल कंटिन्यू अप टू व्हाट, 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच. एच क्या है 1 बाई एन मतलब एन. अब इसका स्क्वायर. ठीक है, सो इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई एन. अब देखिए यहाँ भी 2 स्क्वायर आएगा, सॉरी पहले एक्सपेंड करते हैं इसको. 2 स्क्वायर प्लस हियर सी a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 अपॉन n स्क्वायर. ठीक है, और वी कैन राइट 1 बाई n का होल स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a is 2 into b is again 1 by n प्लस ये कहाँ तक जाएगा, दिस विल गो अप टू सेम हियर सी 2 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका स्क्वायर n माइनस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2 ओके a is 2 a and b is n minus 1 upon n. ओके, अब हम क्या करेंगे, वी विल सेपरेट दिस, कीप 1 by n आउटसाइड ओनली. अब यू कैन सी हियर, यहाँ पे 2 स्क्वायर हर जगह पे 2 स्क्वायर कितने बार, 4 सॉरी n बार. 2 स्क्वायर इज 4 इंटू n दैट इज 4n. 4n हो गया, ये 2 स्क्वायर का तो काम तमाम हो गया. नाउ रिमेनिंग इज 1 ये 1 बाई एन स्क्वायर 2 बाई एन स्क्वायर, इस तरह से n माइनस 1 तक है.
ठीक है। सो 1/n² कॉमन, 1/n² कॉमन, कितने बार? ये n-1 बार है, तो n-1 का स्क्वायर टाइम्स है, मतलब n² फॉर्मूला में लगाना है यहाँ पे। वो क्या होता है? ऑलरेडी आई टोल्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, दैट इज n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट इट विल बिकम हियर n-1 इंटू n इंटू 2n-1, ठीक है, अपॉन 6 विल कम हियर। ओके, ये हो गया। Sorry, don't get confused here. This is different. Okay, this terms completed. Again, like this term is also there, like this term. So plus 2 into 2. Now this is 1/n. This is also a square form. Okay. No, sorry, this is not a square. 2ab. This is not a square. So it is like just 1/n will be outside, and remaining inside will be only n-1 into n. Okay, see how it came. ये क्या है? 1/n, फिर क्या होगा 2/n, फिर 3/n, इस तरह से बढ़ता जाएगा कितने तक? n-1 तक। तो टर्म कितने? n-1। तो हमें सम ऑफ 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n, वो फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? n इंटू n-1/2। सेम आई हैव यूज्ड n इज माई n-1, n इंटू n-1 करेंगे तो n बचेगा अपॉन 2. So here another term, number 2 will come in the denominator. Now we have to simplify this and finally we'll get the answer. So let us see. So last where we got, from that expression it is limit n tends to infinity. ठीक है, what was there here? 1/n is there, 1/n. I am just writing the last expression because page is changed. 4n plus 1/n² into n-1 into n into 2n-1 upon 6 plus, see here, 4/n into n-1 n/2. This was there. So equal to limit n tends to infinity, n tends to infinity. Okay, now keep 1/n outside only. So 4n plus, now see here I'm going to take n outside here. Okay, n outside from all these term, n outside. First this n and this n will get cancel out here, this n and this n will get cancel out here, so remaining will be only 1n. Okay, so see here, okay, so it is n-1 n into 2n-1, n and n will get cancel out. Okay, fine.
सो रिमेनिंग हेयर ना सी हेयर हम क्या करेंगे, ये दोनों से सिर्फ n बाहर निकालते हैं, ये दोनों से, ताकि मैं इस n स्क्वायर को कैंसिल करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ माई ओपिनियन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से n एक बाहर गया, यहाँ से एक n बाहर आया, तो क्या होगा n स्क्वायर, और ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो रिमेनिंग इज़ n, यहाँ पे n बचा, फिर यहाँ क्या बच गया, n माइनस वन अपॉन n, सॉरी 1 माइनस वन अपॉन n, फिर यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस वन अपॉन n, और डिनोमिनेटर में 6 है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा, और ये 4 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग इज 2 इंटू n माइनस वन ओनली। ठीक है, अब इस 1/n को हम नीचे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। सी इट इज़ वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द कैलकुलेशन। ठीक है, तो 4n/n, so remaining is 4 only, plus this n and this n will get cancel out, so remaining is 1/6 into 1 minus 1/n into 2 minus 1/n, plus here 2 into n minus 1 upon n, ये n को मल्टीप्लाई किया हमने। अब लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, बट here we have to expand it, after then we will apply the limiting value, n tends to infinity, 4 plus 1/6 into 1 minus 1/n into 2 minus 1/n, यहाँ पे क्या 2n/n, so it is 2 minus 2/n। ठीक है, so लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या हो गया यहाँ पे 4 प्लस here n टेंस टू इन्फिनिटी, तो दिस टर्म विल बी 0, this term will be 0, so remaining here how much, 2/6, plus this will be 2 and this will become 0, so there is no use of, so equal to, it is now see 4 plus 2 6, 6 plus 2/6, 2/6 will be how much, it is 1/3 only. Okay, so if we simplify this, you will get 19/3, so 19/3 is the answer. See question number 4. Question number 4. 1 to 4 x square minus x dx. Like this question I have already solved, I think example only. What you have to do, if you want to go in easier way, just separate this, like integration of x square and limit from 1 to 4 dx minus integration of 1 to 4 x dx. So assume this as I1 and this as I2. I1 का वैल्यू फाइंड करके और I2 का वैल्यू फाइंड करके I1 में से I2 सेपरेट कर दीजिए, you will get the answer. So there is only 6 questions in the next this exercise. So hope you will complete this in one day. Okay, और बीच बीच में जितने भी फॉर्मूला यूज़ होने वाले हैं, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दोज क्वेश्चंस. Okay, thank you very much.